Thank you, sir. Thank you, ma'am. You may have your seats. My pleasure to be talking to you all today. This is my second time in Nagpur. Thanks to Jaideep and gang for being really persuasive. They ensured that I attend this program, and I'm grateful for you all to have me here today. So they have given me a very difficult topic to talk about brand building, and of course entrepreneurship is the theme of the day. So how many of you here want to start up someday? Quite a few hands. Some more. It will be like 3. People are realizing मुझे भी करना शायद. This is called peer pressure. Right? And how many of you are interested in sales and marketing? Right. Again, a few people. बाकी क्या करने वाले हो? Okay. So whatever you intend to do in life, sales and marketing is very important. Whichever field you are going to work in, whether it's finance or operations or marketing or anything else. Similarly, the spirit of entrepreneurship is important. Even if you are an employee in a company, the spirit matters, right? Which can be called entrepreneurship. So whether you start up or not, but that kind of spirit is very important. समझ आ रहा है? नहीं? Alright. चलो. So very typical of a marketing professional. I've got a presentation here. I don't know if it is visible to you all, but I can see it. So that's good. Okay, this is not working. Yeah, it's working. So now that we are talking about entrepreneurship, in India there are about 1 lakh startups operating currently, which makes India the 3rd largest startup ecosystem. Yeah. This is going to be slow. Coal, iron, or roadway, ports, railways, we have a very strong network. Even agriculture, not just industrial, but agriculture. So you know India is the largest producer of milk. We have ample food grains, sugar, cotton, and whatnot, right? And we export a lot of this. And we also have a strong financial base with a market cap of about $3.39 trillion. Now, something that is very important in today's age, and COVID has of course expedited the process, it's the adoption of digital, right? Everything is getting digitized. We all are using mobile phone and internet. We are downloading a lot of apps. And whatever the user base exists today in India, that user base is giving a lot of time on internet. We are browsing almost all the time. There's some or other social media content we are consuming, right? So we are on the internet, which is very conducive for what kind of brands. Let's say you want to start up a D2C brand, right? Your entire TG is online. Okay. I also want to invite Dr. Jain, Dr. Kulkarni and Dr. Siddiqui sir to come on the stage and felicitate them. I would like to invite Mr. P.D. Sahal sir to come on the stage and felicitate our judges, our guests with a token of love and appreciation. ये कागज गए
इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाता हूँ। And no asset class provides that. For example, somebody who invested say 5 lakh rupees in Bharat Pay we all know for good reasons or bad reasons, okay? So just telling the company which I work with, we invested in Bharat Pay, we wrote the first check in Bharat Pay, and investors who had invested 5 lakh rupees made 4 crore. Now, you know, 1 in a million story hoti hai. So let's not take that example, but that is possible only in startups. And I have also invested in Skyroot, which is a rocket company. There is a big possibility it will become a 30-40x. You know, if I have put in like 1 lakh rupees, it might become 40 lakh rupees. You know, so this asset class is high risk, high return. Are you getting my point? आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हो तो आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ के आज 50 लाख का फ्लैट लिया, आगे जाके हो सकता है 60 लाख में बिक जाए. हम उतना नहीं एक्सपेक्ट करते, ना गोल्ड से एक्सपेक्ट करते, ना लिस्टेड मार्केट में एक्सपेक्ट करते. सिर्फ ये एक एसेट क्लास है जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू स्टार्टअप फाउंडर और आर यू एंटरप्रेन्योर इज द क्वेश्चन. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. वी आर एंटरप्रेन्योर्स. अगर आपको आगे जाके नौकरी नहीं करनी है तो आप अपने आप को स्टार्टअप मत बोलिए. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. यू आर एंटरप्रेन्योर. जैसे आप अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं ना, आपके पूरे डायनामिक्स बदल जाते हैं. आपको लगता है फंड रेजिंग करना होगा. जीरोधा ने आज तक एक भी रुपया नहीं उठाया मार्केट से, और आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टार्टअप है हमारे कंट्री का. ठीक है, आज तक एक भी रुपया नहीं उठाया. फॉर दैट मैटर, आई बिलीव 60 years ago अमूल वाज आल्सो स्टार्टअप ओनली. हल्दीराम आल्सो 70-80 years ago, which is इन नागपुर का, was a startup. विको was also a startup. बस इतना है कि वो लोग बैंक के पास पैसे लेने जाते थे. ठीक है, हम इन्वेस्टर के पास पैसे लेने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी प्रजाति है अभी मार्केट में अवेलेबल. पहले इन्वेस्टर्स थे ही नहीं. पहले आप बोलते थे मेरे पास एक बिजनेस आइडिया, मेरे को 10 लाख रुपए दे दो. पहले कोई थे ही नहीं जो आपको क्या बोलते थे, बैंक चले जाओ. बैंक का प्रॉब्लम क्या है? मॉर्गेज दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न दोगे तो पैसा मिलेगा. एज स्टूडेंट ऑब्वियसली अपने पास तो अपने फोन के अलावा, एप्पल फोन, सैमसंग फोन के अलावा कुछ है नहीं मॉर्गेज करने के लिए खास. ठीक है, तो इन दैट क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम है. ओके, हेलो, या दिस इज बेटर. या सो अपने पास तो कुछ है नहीं, इसलिए हम इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं. अब ये इन्वेस्टर्स अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब बैठे हुए हैं, और ये नॉर्मली कौन है? रिच लोग हैं. एक मिडिल क्लास वाला ये एसेट क्लास को छूता नहीं है. ये रिच लोग छूते हैं क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है. आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स. आर यू कॉमर्स स्टूडेंट्स? तो यू नो व्हाट इज रिस्क. आई डिड नॉट टेल यू. आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए आप इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट? तो आपको अगर देखना है इज इट अ गुड टाइम, आई बिलीव सबसे पहले तो आप ये देखिए. दिस इज अ लैंडस्केप.
2014 में इंडिया में सिर्फ 229 फंडेड स्टार्टअप्स थे, 2022 में 1400 है, एंड ट्रस्ट मी विद टाइम इट इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कॉलेजेस लाइक अंबेडकर कॉलेज, कॉलेजेस लाइक रायसोनी, कॉलेजेस लाइक IIM, दे आर हैविंग दिस एज अ डायलॉग। शार्क टैंक आने से हमारे माँ बाप को समझ में आया कि नौकरी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। मैं खुद नौकरी करती हूँ बाय द वे, ठीक है, बट वो मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं कभी नहीं बोलूंगी नौकरी करना बुरी बात होती है, इट्स माय पर्सनल चॉइस, ठीक है। बट मुझे लग रहा है आपको आवाज आ रही है, हाँ तो बोलो ना। दिस प्रॉब्लम विद दिस, मैं बहुत पीती थी रेड बुल एग्जाम के पहले, नींद आ जाए, कुछ नहीं होता था और नींद आती थी। लेकिन भाई नाउ दैट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई गो टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, I don't need anybody. I have Ola driver with me all the time. Ola, Uber. They have made my life easy. Zomato, Swiggy, we cannot think our life without them now. Now, this is important. जो रेस्टोरेंट ओनर पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था, आप ऑब्वियसली अकाउंट्स के स्टूडेंट है, इसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गाँव वाले के खर्चे लग रहे थे, अब वो घर पे आपको पहुंचा के दे रहा है, उसके तो खर्चे खत्म हो गए ना, ओवरहेड कॉस्ट थोड़ा बहुत जोमेटो के साथ शेयर कर रहा है, टॉप लाइन बढ़ गया ना। पहले 1 लाख रुपए का धंधा कर रहा था, 2 लाख का वही आउटलेट से धंधा कर पा रहा है, यस और नो। तो देयर आर एग्रीगेटर मॉडल, टीरा। एक तो प्रॉब्लम क्या हमारे देश में रिलायंस है, वो जहां नायका ने अपना लॉन्च किया वहां पे रिलायंस ने अपना टीरा लॉन्च कर दिया, ठीक है, टीरा टायरा जो भी है वो, ठीक है। बट द थिंग इज देयर इज सो मच टू डू इन दिस स्पेस। इट कैन बी एज सिंपल एज पिक अप एनी सेक्टर। रेलवे में तो कितना बाकी है, स्काई यू नो रॉकेट सिर्फ इसरो बना रहा था इंडिया में, अब प्राइवेट कंपनी रॉकेट बना रही है। क्यों? क्योंकि इसरो की पॉलिसीज अच्छी हो गई। 2 कंपनी, अग्निकुल और स्काईरूट में तो नागपुर का बहुत पैसा हो रहा है, ठीक है। These companies are doing massive work. They are making, private limited is making a rocket for satellite launch. If they are successful, वो बेचेंगे अब्रॉड में भी। And India का इसरो is highly respected amongst the world, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी एंड ऑब्वियसली द इंटेलिजेंस। रेलवे में बाकी, एविएशन में, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो, ईवी में, व्हाट इज ईवी? ईवी में कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन आके रखा है। क्यों आके रखा है? बिकॉज एनवायरमेंटली भी अपने को देखना है, ठीक है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जहां पे आपको एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी समय देना है, समझना है। तो इतने सारे सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन समझ लो, रोड समझ, इलेक्ट्रॉनिक्स, बोट ने पूरे इंडिया को चैलेंज कर दिया, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को। दे विल स्टार्ट एनीथिंग यू पिक अप, पंखा, एटम बग फैन, यू जस्ट लुक अराउंड। अपने घर पे अभी वो परफोरा टूथपेस्ट, जस्ट गो होम, लुक एट सर्टेन थिंग्स व्हिच इज नेवर चेंज्ड एंड an idea will come to your mind, and an idea will simply come to your mind. All you have to do is keep looking what is causing inconvenience to you. If there is inconvenience, there is a startup idea. But mind you well, इन्वेस्टर का पैसा फ्री में नहीं आ रहा। इन्वेस्टर के पास अगर आज की तारीख में 20 करोड़ रुपए रखे तो उसके पास कम से कम 10,000 अपॉर्चुनिटीज भी इन्वेस्ट करने की, तो वो आप में क्यों करेगा? तो when you are going to investor, like when I am investing, I am invested in 40 odd startup now. Whenever I am investing, I am looking at the founder. जिद्दी है क्या? पावर कमीज का फाउंडर हद में जिद्दी, हार ही नहीं मानते, ठीक है। जिद्दी है क्या? आइडिया अच्छा है क्या? अच्छा, आइडिया से शादी मत कर लो, धंधा धंधे जैसे रहने दो, ठीक है। अगर उसमें चेंजेस की जरूरत है, पिवट करने की जरूरत है, तो वो करना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टर की, मेंटोर की बात सुननी पड़ेगी। एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर और योर एजुकेशन, स्टार्ट बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट दैट यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। जरूरी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन आप बन सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे इंडिया का मार्केट जो है, ये 10 साल पहले ऐसा नहीं था। आप मेरे को पूछेंगे मैम आप बन जाओ स्टार्टअप फाउंडर, आई कैन नॉट बिकम, बिकॉज वो ब्लड अलग है। 20 आवर्स काम करने वाला है, 15 आवर्स काम करने वाला है, 100 इन्वेस्टर से गाली सुनने वाला है, 100 इन्वेस्टर मना करेंगे, फिर 101 वाला 10 लाख रुपए देगा। उतनी एनर्जी होनी चाहिए अपने में, देन यू आर ऑन दैट पार्ट। वो मैम ने भी कहा था कि ओवरनाइट जर्नी नहीं आती, इज अ लॉन्ग प्रोसेस। शिप रॉकेट इज अ स्टार्टअप,
सालों से कौन रूल कर रहा था? DTDC। शिप रॉकेट ने आया, क्या किया? D2C ब्रांड्स को डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, मैं अभी इंडियन स्टार्टअप्स की बात कर रही हूँ। फिर ऑब्वियसली यू हैव अदर्स आल्सो व्हिच आर कमिंग इन इंडिया एंड डूइंग प्रीटी वेल एज वेल, करेक्ट? तो स्टार्ट लुकिंग अराउंड। आई बिलीव times are good in our country to be in our country. These are a lot of sectors where you can see disruption is happening. So you can have your seat. Now I would like to invite Mr. Kamlesh sir, who is the co-founder of Reza and Energy Mobility. He is also an advisor, investor and mentor to startups in the field of food and beverages and electric vehicles also. He is the winner of Rex Karamveer Chakra Award and also the Mayor Innovation Award by NMC. I would like to ask him to share his journey and also interact with the audience. Thank you, sir. हेलो, आ रही है? हेलो, हेलो फ्यू, हाउस द जोश? आइस ब्रेक। हाउस द जोश थोड़ा सा। सो यहाँ मैक्सिमली बच्चे MBA फाइनल ईयर के होंगे। बीकॉम किसने किया है यहाँ पे? BSc बीकॉम किसने? और MBA क्यों लिया? कोई बताएगा मेरे को MBA क्यों लिया? कोई भी रैंडम बच्चा या बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ऐसा काम। एक इनिशिएटिव यार। वाई MBA? बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, और ठीक है, MBA है ना, सीखने के लिए ही है, मतलब बिजनेस सीखना है। तो एंटरप्रेन्योर कौन बनना चाहता है? क्या आइडिया किसी के पास है? अच्छा आइडिया, मेरे को 2 आइडिया बताओ, इफ यू हैव समथिंग। Conversation. I need 2 good ideas जो बिजनेस करना चाहता है। Anyone? It's a session for entrepreneurship. तो मैं random लूंगा, then we can have a Q&A. या बिजनेस तो बनाना है, कुछ तो होगा आइडिया। हाँ प्लीज आ जाओ, सामने आ जाओ, डर क्यों उठाएंगे हम साथ में। क्लैप हो जाए इसलिए। हेलो, सो आइडिया बताओ तुम्हारा। माय आइडिया इज कि आज जैसे देख रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स जब ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, तो उनका जब लगेज वगैरह उठाने की बारी आती है तो होता कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज सब इंगेज है अपने अपने वर्क में। तो उनके लगेज वगैरह के लिए उठाने के लिए एक ऐसा ऐप बिल्ड करना है कि अगर मैं प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन 50 मिनट्स पहुंच रही है तो मैं अपना PNR नंबर डालूँ, जिससे वो जो भी लगेज उठाने वाले उनको वो मेरा सीट नंबर पता चले। आफ्टर दैट विदिन 15 to 20 मिनट्स जब ट्रेन डेस्टिनेशन में अराइव करती है, ओके, जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर अराइव करेगी तो वो पर्टिकुलर जो भी कूली वगैरह होगा वो अपने सीट पे आएगा, पूरा का पूरा लगेज लेगा एंड टिल और टैक्सी और कैब वो अपने को छोड़ के देगा। प्रॉब्लम इसमें ऐसा आ रहा है कि अगर ये ऑफलाइन करने जाए तो बार्गेनिंग करते तक अपनी ट्रेन निकल जाती है, स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। दैट्स व्हाई आइडिया बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत स्ट्रांग है। ओल्ड एज बंदों के लिए तो बहुत स्ट्रांग है, मतलब हर कोई चाहता है यार मैं ना अच्छे से बैठ जाऊं जब मैं ओल्ड हो जाऊं, मतलब पैक इतना पैक। और इंडियंस का क्या है सबसे पहले कि लॉजिस्टिक्स सबसे ज्यादा लेके जाते हैं साथ में,
मतलब साड़ियाँ, हर चीज पूरा, मतलब 4-5 बैग। फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में क्या होता है, मतलब एक बंदा होता है, उसके पास सिर्फ एक बैग होता है और एक एक बैग कैरी कर सकता है। इंडिया में उसके पास 4 लगेजेस होंगे और वो जाएगा ट्रेन में। तो है आइडिया बहुत स्ट्रांग। और इससे क्या हो रहा है, जो इन्होंने बोला कि यार कुरियर जो सर्विसेज है या जो कुली है वहां पे रेलवे में, वो स्ट्रगल कर रहा है, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दे आर नॉट गेटिंग मनी जो पहले कमाते थे वो। तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इज कनेक्टिंग टू द पर्सन जो प्रॉब्लम में है पैसा कमाने। इनसे ये भी पैसा कमाएंगे और वो भी पैसा कमाएंगे, है ना। दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। एक और बंदा कोई आ जाओ। या वेरी वेल। एसी का दोस्त है ना भी। माय आइडिया इज अबाउट स्मार्ट पार्किंग, क्योंकि अपने जितने भी Tier 1 Tier 2 सिटीज है, द बेसिक प्रॉब्लम दैट कम्स इन द मॉल्स एंड एवरीवेयर एंड ओके। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे भी, बाद में जो अभी दशहरा हुआ था उसके टाइम पे भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज ऑफ पार्किंग, क्योंकि कहीं पे भी पार्किंग करने की जगह नहीं थी। एंड वेरएस कई लोग इधर उधर गाड़ी पार्क करते हैं, जहाँ पे स्ट्रीट गाड़ी पार्क होनी चाहिए थी वहाँ पे कार वगैरह सब रैंडमली पार्क करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लेस जो बचना चाहिए, क्योंकि दैट डजंट सेव ओके। एज वेल एज जो मॉल वगैरह में जो पार्किंग होती है विच कैन बी डन ऑटोमेटेड, लाइक अगर एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, सो एनीबडी कैन गेट टू नो कि कहाँ पे पार्क करना है, वेयर इज अ फ्री पार्किंग स्पेस, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली जाए पार्क करे, दे गेट द रिसिप्ट ऑनलाइन ओनली, एंड बहुत पैसा बचेगा। प्लस द वर्कफोर्स दैट दे आर स्पेंडिंग लाइक lakhs rupees on per person every year, that can also be saved. That is my idea of creating a smart parking where the sensors will all do all the work plus the mobile app will do the other things. Thank you. इनोवेशन यूज किया है इसमें मैंने। तो आप लोग कभी भी स्टार्टअप बनाएं आज की डेट में, तो हाउ द इनोवेशन इज कनेक्टिंग योर स्टार्टअप, दैट विल मेक मोर स्ट्रॉन्गर फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। एक लड़की आ जाए या 2 लड़की आ जाए जिसके पास अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि यार वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना जरूरी है। या प्लीज, थैंक यू। काम women should be take a step. आ जाओ if you have an idea। चल दोनों में दोनों आ जाओ। नहीं आइडिया और किसी के पास है आइडिया यार? वुमेन शुड बी, आ जाओ, कोई तो है। चलो एक बंदा ही आ जाओ यार, कोई और होगा जिसके पास अच्छा आइडिया होगा, वी कैन डिस्कस। आ जाओ, थोड़ा भाग के आ जाओ, क्लैप करो। Good evening, everyone. My name is Lakshmikant Gautam Borkar. I'm from Nagpur. And 2008 बैच से मैं ये कॉलेज में था। So मेरा आइडिया ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट बहुत लोगों को पता नहीं है। केमिकल बहुत यूज होता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। एनवायरमेंट हजार्डस केमिकल जो रहते हैं एनवायरमेंट को बहुत गंदी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी के बिजनेस में मैं एंटर कर रहा हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरा MIDC में है जगह। सो इट्स अ PVD प्रोजेक्ट। उसका फुल फॉर्म है फिजिकल वेपर डेपोजिशन, जहाँ पे पाउडर कोटिंग, केमिकल कोटिंग की वजह से बहुत सारा केमिकल जो वेस्ट निकलता है एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। पर ये टेक्नोलॉजी की वजह से विदाउट एनी केमिकल जो भी कोटिंग प्रोसीजर हो रहा है, ये एक लग्जरियस प्रोडक्ट पे एक सिंपल उसको कितना ब्यूटिफाई कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। एंड दिस बिजनेस इज इवॉल्विंग। योगी चीफ मिनिस्टर ऑफ UP,
he has given separate loan for this project. इसका डिटेल आप देख सकते हैं. So anybody wants to know, easily मिल जाएगा. This machine is what we call different brands के machines हैं, पर इस पे बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं. कोटिंग बिजनेस जो मेरे ख्याल से बहुत लेट हो गया इनका में आने को, पर जो हम लोग फोन यूज कर रहे हैं वो पीवीडी के डिस्प्ले जो है पीवीडी की वजह से बनता है. हमारे करेंसी नोट्स है पीवीडी की वजह से बनता है. सोलर पैनल्स है पीवीडी की वजह से बनता है. हमारा जो वॉच है जो कोट होता है स्टील्स पे वो पीवीडी की वजह से बनता है. कार पे जो क्रोम लगता है पीवीडी की वजह से होता है. सो मेनी पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट कि इसमें एडवांसमेंट कैसे ला सकते हैं. जापान इज वर्किंग ऑन इट. दिस मशीन एआई जनरेटेड हो गया है. 5 करोड़ का एक मशीन है, पर यहाँ पे नहीं है, विदर्भ में नहीं है. इफ आई एम डूइंग इट, यू गाइस विल आल्सो डू इट. मैं इनिशिएट कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन इट and I will be the first person to start this business in Vidarbha region. So Vidarbha need people like us. We need to take that step. मेरे को बहुत सारे challenges आए, but I'm facing it, learning that. Good. Thank you so much, sir. So perfect. देखो, startup is connecting environment, so you can also connect environment, right? तो काफी अपॉर्चुनिटी है विदर्भ वासियों के लिए, विदर्भ के बच्चों के लिए. और यहाँ के जो सेक्टर है गवर्नमेंट का जो 200 CR का इन्वेस्टमेंट है मोर और स्टार्टअप्स पे, तो यू कैन बी वन ऑल्सो उसमें से. बट तुमको तुम्हारा स्टार्टअप रन करके दिखाना पड़ेगा. इफ यू हैव ब्यूटीफुल आइडिया जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद अ गुड टीम, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. और यहाँ जितने भी बैठे हैं ना बच्चे, वो जॉब ना करते, मतलब आप जॉब के पीछे ना दौड़ो यार. इफ यू हैव अ गुड आइडिया ना, इम्प्लीमेंट दैट. अब यहाँ बैठे बैठे मैं स्टार्टअप्स बना सकता हूँ. यहाँ बैठे बैठे हम लोग थाउजेंड्स कंपनीज को कनेक्ट कर सकते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी बना सकते हैं. बट वही है, आप लोगों को क्या करना है दैट यू वांट टू डिसाइड. ठीक है, एटलीस्ट 100 यहाँ पे होंगे बच्चे, 80 से 100 बच्चे होंगे. तो एक फाउंडर को फाउंडर यहाँ एक अच्छा आइडिया लगा के बहुत चीजें बना सकता है. तुम्हारी कनेक्टिविटी होगी अच्छी. तो दैट गुड यार, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हो एंड गुड गोइंग एनीथिंग. सो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ who I am and what I am doing right now. So I am the founder of Lenergy Mobility, co-founder, and Rezo. It's a company. Both companies is working in electrical vehicles. One, Lenergy Mobility is working in the segment of human resource for the automobile and for the training part in EV sector. And second, that we are developing the service centers for the EVs in India. Our target is 500 service centers in India for a petrol and the electrical vehicle spare parts and the service parts. So we are creating a huge connect for the industry, for the automobile industry right now. मैं काफी स्टार्टअप्स के साथ काम भी करता हूँ एज ए मेंटर, और कुछ अच्छे स्टार्टअप्स के साथ मैंने फॉरेन के स्टार्टअप्स को इंडिया में लेके आ रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं. तो दैट वी आर वर्किंग ऑन. सो मैं चाहता हूँ कि मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड सो आई कैन आंसर. मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बट आई लव टू आंसर पीपल. सो Q&A हो जाए तो that will be good. If you have any questions, you can answer. I can answer for you. For startups, how to make startup, how to pitch, anything. Anyone? आ जाओ, खड़े हो जाओ and take a mic. क्योंकि पता है क्या, जब तक आप प्रॉब्लम फाइंड नहीं करेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. इवन इफ द कंपनी मार्केटिंग सेगमेंट्स में भी आप देखेंगे ना, यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड क्रिएट द थिंग्स, देन ओनली द कंपनी विल रन. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द मार्केटिंग एंड द क्रिएटिविटी, राइट सर? तो क्रिएटिव होना चाहिए. आप लोग MBA में हो यार,
You should have a questions how to develop the company, how to make pitches, everything. मेरे को 5 क्वेश्चन चाहिए आप लोगों की तरफ से. चल, then I can stop. Please, आ जाओ ऊपर आ जाओ. क्वेश्चन है. Sir, can you please highlight any specific leadership quality or any quality which is required in doing business or doing a startup? देखो, लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहले आप ऊपर आ गए, दैट इज फर्स्ट लीडरशिप. मतलब इतने सारे लोगों में सबसे पहला लीडर यही है. क्वेश्चन पूछ लिया है ना. प्रॉब्लम कहाँ है? लीडर एवरीवन हैज एन लीडरशिप. सब में है लीडर. मतलब आपको निकालना पड़ेगा उसमें. ऐसा नहीं कि यार पर्टिकुलर बंदा ही फिट बैठेगा. आप सीखोगे ना, सीखते सीखते आप खुद लीडर बनते जाओगे. अब एग्जांपल लेता हूं मैं, बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल लेता हूं. वहां पे एक बंदा आता है, फ्रेशर आता है, इज नथिंग लाइक फाइनेंस में एमबीए किया हुआ उसने, और उसको बोलते हैं यार आपको लोन देना है लोगों को, जाके लीड्स लेकर. पर उस लीड्स को पीछे से जो सपोर्ट करता है टीम, फिर उसको वो लीड कन्वर्ट करता है. दैट इज अ लीडरशिप. वो बिजनेस जब लेना शुरू करता है या उसको लीड करना शुरू करता है टीम को, दैट कम टू द लीडरशिप. दैट्स इट. मतलब एवरी बिजनेस में आप कहीं पे जाएंगे, फाउंडर हैव लीडरशिप की, वो टीम रन कर पा रहा है ना, तो परफेक्ट टीम बना पा रहा है. दैट इज ऑल्सो लीडरशिप. आप कोई भी आइडिया लेके आ रहे हैं और उसको 100 रुपए से 1000 रुपए, 1000 रुपए से लाख रुपए तक लेके जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लीडरशिप. दैट्स इट. थैंक यू सर. और वहीं दे दो किसी को. ठीक है ना. So what inspired you to become an entrepreneur or to start a business, and what challenges we have faced by you while starting or getting into it? Because जनरली सर ऐसा होता है ना हमारे साथ कि इस जनरेशन की मेंटालिटी ऐसी है कि कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि करना है कि नहीं, और मोटिव सभी का एक ही रहेगा कि प्रॉफिट ही चाहिए. तो सर हाउ टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ थिंकिंग? यार देखो, स्टार्ट करना है ना तुमको, तुम जीरो से शुरुआत कर सकते हो, है ना. तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है ना, तो बट यू हैव अ गुड आइडिया. यू हैव बैंक, यू हैव इन्वेस्टर्स, यू हैव टू फाइंड आउट कि कहां से क्या लेना. ठीक है. मैं मेरा बताता हूं कि माय फादर बिलोंग्स टू आर्मी बैकग्राउंड. तो हम लोग पूरा देश घूमे. मतलब मैं बचपन से पूरा देश घूम लिया ऑलमोस्ट. तो मेंटेलिटी यही थी कि यार आर्मी में जाना है. आई ट्राइड एनडीए, आई ट्राइड सीडीएस फॉर इंटरव्यूज. तो वहां पे हुआ नहीं. ऐसा नहीं यार, नहीं बहुत चीजें हो रही है, नहीं हो रहा. लक फैक्टर भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट वो दैट लक फैक्टर कुछ नहीं होता. तुम्हारा पैशन जहां पे होगा ना, वहां वो लेके चला जाएगा. वो ऐसा नहीं कि फेलियर हो गया, नहीं. फेलियर तुमको सिखाएगा, ये याद रखो. सो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि तुमको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू. लास्ट फैमिली और सब कुछ ये बोलते हैं तुम्हारी जेब में पैसा कितना है, वो इंपॉर्टेंट करता है. ठीक है. लास्ट में यही पूछेंगे तुम कितना कमाते हो, क्या करते हो. अब तुमने जीरो से शुरुआत की ना, जीरो इज द बिगेस्ट वैल्यू. एक के आगे लगा दो जीरो तो 10 बन जाता है, उसके आगे लगा दो 100 बन जाता है. तो वो लगाते जाओगे ना, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा. तो आपको शुरू कहां से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव एन आइडिया, डिस्कस विद सम गुड मेंटर्स. जो सेम बैकग्राउंड के लोग होंगे ना, उसके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनसे बात करो. सर, हाउ यू स्टार्टेड दिस? आई हैव एन आइडिया, how I can implement this. Everything is there. बस आपको फाइंड करना है कि where you want to go and what's your idea and what mentor will be yours. ठीक है. Thank you sir. Hello sir. What are the basic things that needs to be kept in mind while designing a startup? यार यहाँ डिजाइन वर्ड होता ही नहीं है कुछ. यहाँ तुम्हारा आइडिया है, बस तुमको टीम डिसाइड करनी है तुमको किस वे में जाना है. इनोवेशन राइट नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज लाइक, इसमें कि एक बेसिक है. मैम केम फ्रॉम अमूल. ठीक है. उन्होंने बेसिक से शुरुआत किया 1956 से. एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर उसके बाद फाइंड किया कि और क्या लॉन्च कर सकते हैं, फिर एक स्टेप लिया, है ना. इनोवेशन लाया. नीड ऑफ पब्लिक,
पब्लिक की क्या नीड है उसके हिसाब से आप यू हैव टू एक्सपैंड। आइडिया है उसको एक्सपैंड कैसे करना है, आज की डेट से हाउ यू कैन कनेक्ट द इनोवेशन। मार्केटिंग बहुत इजी है आज की डेट में, बट आपको रीच कहां करना है, टारगेट ऑडियंस कहां पे लगाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। What are the basic things that need तो बेसिक थिंग ऐसा नहीं, इफ यू हैव एन आइडिया, सपोज आपने आइडिया किया, यू हैव टू स्टार्ट अ कंपनी। पहले आपने स्टार्ट कंपनी किया, पहले या तो स्क्रैच से शुरू करोगे, मेरा आइडिया रन होगा नहीं होगा, 1-2 महीना उसके ऊपर रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर यार इस पे काम करने वाले मैं कितने बंदे चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर काम कर पाऊं, टारगेट कि मेरे को कितना फंड चाहिए, फिर उसके बाद मैं और फंड 6 महीने के बाद मैं इतना फंड लेने के बाद और क्या कर सकती हूँ। उसके बाद इफ यू रन 6 मंथ तुमको फंड चाहिए होगा, तो हाउ यू विल गेट इन द फंड्स। फिर और उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम फंड तो ले लिया, बट उसको इन्वेस्टमेंट कहां कहां करनी है एग्जैक्टली उसको। इफ यू टेकन 10 लाख मार्केट से, बैंक से ले लिया था वो 10 लाख 5वें महीने में खत्म होने पाया, व्हाट यू विल डू टेल मी। We'll need an investment so that we So how can you will get do returns that? out of it. या तो आप बैंक के पास जाओगे वापस, Yeah. या तो इन्वेस्टर के पास जाओगे जो आपका आइडिया सुने और उसमें इन्वेस्ट करें। Yes. तो यू हैव टू डिसाइड, बैंक या तो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इतने इजीली पैसा नहीं देता, वो भी देखता है यार इसमें पोटेंशियल कितना, जिद कितना, मैम ने बोल के गया जिद कितना, दैट इज इंपॉर्टेंट। Thank you, sir. हेलो सर, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मिंत्रा या फ्लिपकार्ट आया, उसके वजह से लोगों का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। जैसे पहले लोग मार्केट में जाके शॉप करते थे, अभी ऑनलाइन बैठ के शॉप कर रहे हैं। सो अगर मेरे पास ऐसा कोई आइडिया है जो लोगों का बिहेवियर ही चेंज करता है, बट मुझे इन्फ्लुएंस करते नहीं आता, लोगों को बताते नहीं आता कि भाई तुम अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेरा आइडिया या सर्विस अपनाओ, सो वैसे कैसे करें? देखो यार, फैमिली एक है ना, प्रेजेंटेशन में एक बहुत प्यारा क्रिएटिव दिखा है उनका ब्रांड फेस है उसका, वो कार्टून का। तो यू हैव अ ब्रांड फेस, मतलब कहां से शुरुआत कर रहे हो ना, तो उसको पकड़ के रखो। और वो आइडिया कहाँ है तुम्हारा, मतलब इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग, लाइक यू सेड कि मेरे को फ्लिपकार्ट बनाना है, और मार्केट में ऐसा नहीं है कि यार फ्लिपकार्ट हर कोई यूज करता है ना। तो ऐसा अपने को दो सेगमेंट है यहाँ पे, एक ऑफलाइन वाला, एक ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन तो अभी आया है, ऑफलाइन में काफी लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं है। तो हाउ यू कैन पिच दैट प्रोडक्ट, ठीक है। 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक होता है कि अमूल ऑनलाइन में बिकेगा, एक अमूल ऑफलाइन में बिकेगा डेयरी में, है ना। तो हाउ यू आर कनेक्टिंग योर आइडिया कि मेरे को ऑफलाइन ही बेचना है, मेरे को ऑनलाइन ही बेचना है। यू हैव टू सेगमेंट, आपको डिसाइड करना है कि कितना मार्केट मेरे को ऑनलाइन बूस्टअप करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एवरीथिंग। सोशल मीडिया मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के डेट में। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, यू जस्ट फिक्स द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऑफलाइन मार्केटिंग में कितना होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग में कितना होगा, है ना। अब कंपनीज में भी 2 टीम होती है, एक ऑफलाइन वाली जो सेल्स मार्केटिंग करती है, ग्राउंड पे लोगों तक पहुंचती है, एक ऑनलाइन वाली मार्केटिंग होती है जो क्रिएटिविटी बनाती है और वो प्रोडक्ट ऑनलाइन ये सेल करती है। फिर जब वो ऑनलाइन दिखता है तो लोग ऑफलाइन जाके लेते हैं उसको, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, ये फलाना ढिमकाना जो भी होगा। तो या सर लोगों को अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकाले ताकि वो मेरा आइडिया अपनाए? जो कंफर्ट जोन है ना, इन्फ्लुएंस कैसे करे लोगों को? इन शॉर्ट देखो, एडवर्टाइजमेंट इज इन्फ्लुएंस आज के डेट में, है ना। मतलब आप अब सपोज अमूल का एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, तो उसमें हाउ दे वर क्रिएटिंग द मार्केट, हाउ दे आर फिक्सिंग, या बच्चे को टारगेट करना है, बूढ़ों को टारगेट करना है, या किसी को भी टारगेट करना है, तो दैट शुड बी फिक्स्ड। मैम ने बोला प्रोटीन के लिए टारगेट करना है, तो प्रोटीन इज एवरीथिंग, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, फिक्स्ड है ना। तो आपको सेगमेंट करना, आपको कहां पिच करना। थैंक यू। Good morning. Sorry, good afternoon. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, I want to introduce myself. I am